Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and utilizing the time you people are having here in the beginning of summer vacations and enhancing your knowledge and working for your own betterment and the rest of the people in the society. We are dealing with the prisoner of Zenda, and we finished the last time till chapter number 19, and that was face to face in the forest. Now we will move towards the chapter number 20, that is the prisoner and the king. Before it, let us have a bit analysis. The analysis on the critical grounds till chapter number 19. अगर हम देखें इसके अंदर तो हमें नजर आता है रूपर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल नेव, कनिंग, brave. He tried his best to achieve everything in this plot, but he was failure. And why he was failure? There was a very simple thing about it, that he was on the path of vice. Tried to cheat Anthony de Mauban, but couldn't. He killed Black Michael, but by the end of the day he was failure. But no one was there to catch him. कोई भी नहीं जो उसे पकड़ सके, और आखिर में वो भाग जाता है, जो कि इस प्लॉट की एक बड़ी कमाल की क्या कहते हैं ब्यूटी है. क्यों? ब्लैक माइकल तो मारा जाता है, लेकिन वन ऑफ द ब्लैक माइकल 6 is still alive. Why is it still alive? That is the question. Apart from it, when we see the role of Rudolf Essendale, he is doing things entirely, devotedly, dedicatedly, just to rescue the king, and he is having nothing personal there. And by the end of the day, he is successful. Apart from it, you are going to see the devoted friends in the shape of Fritz, in the shape of Sept. Sept और Fritz की सूरत में आपको devoted friends मिलेंगे. Apart from it, एंटनी डी म्यूबान, बहुत ही अलग किस्म का आपको करेक्टर नजर आएगा ये. और जब हम इस चैप्टर नंबर 20 में, दैट इज द प्रिजनर एंड द किंग, इसमें जब हम डील करेंगे चीज़ों को, देखेंगे कि हाउ डिफरेंट पिक्चर वी आर हैविंग ऑफ दैट वुमन हियर. It's going to be a very good one. Now, we left there. The king is rescued. Sept और Fritz आ गए, Essendale को भी बचाया. All these things happen in a nick of a time. Now, the title of the chapter number 20 is The Prisoner and the King. If you do remember, till chapter number 19, Rudolf Essendale, the imposter, is the king. And the prisoner, you know, that is nonetheless Rudolf Alberg. Now, here things are changing. अब जो अब तक बादशाह था वो प्रिजनर होगा, और जो अब तक प्रिजनर था रुडोल्फ एल्बर्ग, रियल किंग, नाउ ही इज गोइंग टू बी द किंग. नाउ व्हाई दे हैव चेंज्ड दिस थिंग हियर, इट विल बी क्लैरिफाइड, और यू आर गोइंग टू हैव द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट थिंग इन दिस चैप्टर नंबर 20. स्टार्ट करते हैं इसे, और इसके स्टार्ट करने से पहले आपको स्टोरी हम बता देते हैं. Let's have the story first, because why we are having a different thing there by the end of the lecture today. It's a very simple sort of a story, rather than to be story and identical thing there. मैसेज है मॉरल इसके अंदर, जिससे आपको बहुत खुशी होती है. एक आदमी, यूजली स्टोरीज आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. एक आदमी, एक दफ़ा का जिक्र है, लॉन्ग टाइम अगो, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो एक आदमी होगा, एक औरत तो हो नहीं सकती है, तो एक आदमी. एक आदमी के सामने 6 अंडे रखे हुए, देख के बहुत खुश हो रहा. क्यों? 6 के 6 अंडे बहुत साफ सुथरे. क्वाइट हैप्पी टू सी द आउटर लुक ऑफ द एग्स देयर. सो व्हाट ही डिड, क्या किया उसने, एक एक करके अंडे को तोड़ा, देखो अंदर क्या है.
अब जैसे ही वो अंडों को तोड़ते गया, बाहर से इतने खूबसूरत दिखने वाले अंडे वन बाय वन जब उसने उनको तोड़ा, सब खराब। ये क्या हुआ? इसको सिंबॉलिकली समझिए। हमारे माशरे के अंदर, इन दिस सोसाइटी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट people with clean clothes, साफ सुथरे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन जब आप इनकी इस खूबसूरती के खौल को थोड़ा सा उतारते हैं ना, तो आपको इतना ही बुरा, इतना ही भयानक शख्स अंदर नजर आता है, उस अंडे की तरह। वो भयानक शख्स को आपको भी आजमाना हो, लेन देन करके देखें आप उसके साथ। एनालाइज द पर्सन when you are in tough time. See the natural look of that person when that man is in anger. आप हैरान रह जाएंगे कि वो बाहर से इतना खूबसूरत दिखने वाला आदमी अंदर से इतना ज्यादा मुख्तलिफ है। हमें यहाँ पे इंसान की दो परतें हैं, दो सतहें नजर आती हैं, एक आउटर, एक इनर। हमें जो आउटर दिखाया जाता है ना, वो होता नहीं है, इनर कुछ और होता है। हमें नजर आता है कि एक इंसान के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फुल ऑफ प्रेजुडिज्म, फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फुल ऑफ हेट, मतलब इस्तेसाल, तासुब, नफरत से भरपूर है ये माशरा। हमें नजर आएगा जो ऊपर खूबसूरती का खोल लेके घूम रहे होते हैं हमारे पास। अब जब चीजें इस तरह से होती हैं हमारे माशरे के अंदर, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब किस तरह से चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाए, हाउ टू face it and how to solve these riddles and queries there. तो इस दुनिया के अंदर आपको सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी, एक तरफ दुख और दर्द में मौजूद लोगों की आहें, और दूसरी तरफ लोगों का इस्तेसाल करते हुए कुछ मखसूस लोगों के कह के। ये कह के इसलिए होते हैं कि वो मजबूरों के साथ ज्यादती करते हैं, और वो आहें इसलिए होती हैं कि वो उनके अंडर विक्टिम होते हैं। बट it is not the end of each and everything. Try to keep one thing in your mind. Things change, things are changing, things will change. The time will come, you are going to see that the people who are pretending to be good, wearing good clothes, but internally, from their inner side, what they are doing, it's entirely different. You are going to find it will change with the passage of time. Winston Churchill once said that success is something really about being failure and failure, but not to lose your enthusiasm to be successful in the end of the day. Success का मतलब, चेंज का मतलब ये होता है, चीज़ों को फेस करो, बेयर करो और उनके ऊपर रहो. So let's see, go with the keynotes, go with the story and see what's going on there. Okay, so it's the chapter number 20 we are having here, and it's the prisoner and the king, and I told you about the title. Now let's move towards the characters, the important and the main character, okay, who are going to lead us towards the conclusion or the catastrophe of the novel. They are Rudolph Wessendine, Princess Flavia. They all are involved directly or indirectly. Fritz, Sapt, Marshall, John, and Rupert, Michael, and nonetheless Rudolph Alberg. Now let's see how they are impacting the main plot and how they are leading us towards the conclusion. The keynotes. Now, Rudolph told what he faced there. रुडोल्फ ने वो कहानी बताई जो उसने फेस की वहां पर, जो उसने देखा. अब उसके अलावा भी हमारे पास लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ चीजें देखी और फेस की. लाइक वी आर हैविंग द स्टोरी ऑफ एंथनी डिमन, वी आर हैविंग द कंसर्न्स ऑफ Sept and Fritz, that how they entered into the castle. So let's start with Anthony de Guzman. Rudolph is saying that the things happened there, and it was told by the Sept
that how Anthony Newman revealed each and everything. जिस तरह से ब्लैक माइकल ने इनको बुलाया था पेरिस से ड्रेसडन, इनको नहीं पता था कि होना क्या वाला है। ये सारी स्टोरी एंटनी न्यूमैन ने खुद बताई उनको, सेप्ट को। ये आई, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही थी इनको नहीं इलम था। थोड़े अरसे के बाद इनको पता चलता है कि जिस काम के लिए इनको बुलाया गया है उसमें एक खातून है जो कि प्रिंसेस प्लेगा भी है, और इनकी शादी जो है ब्लैक माइकल से होगी अगर ब्लैक माइकल किंग बन जाते हैं। इवन तो शी वाज वर्किंग विद हिम, मोहब्बत करती हैं उनसे ये, इसलिए उनके साथ काम करती हैं। इसी मोहब्बत के ब्याह पे द लेटर्स शी रोट, द वार्निंग शी गेव टू द प्रिंसेस फ्लेविया, okay, these all acts she did there on the behalf of the love. लेकिन चीज़ें वहाँ पर चेंज हुई जब ये ब्लैक माइकल के साथ जेंडा के कैसल में आए और इनको वहाँ पर रखा गया, और इन्होंने, याद हो आपको, एक शॉर्ट नोट भेजा था रुडोल्फ वेसेंडाइल को, वेयर शी वाज आस्किंग एंड इम्प्लोरिंग टू टेक आउट फ्रॉम द डन ऑफ मर्डरर्स। यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू हुई थोड़ी सी। जैसे हमने देखा कि लड़ाई हुई रूपर्ट की और ब्लैक माइकल की एंटनी डी मूवान पर। ये लड़ाई विटनेस्ड बाय रुडोल्फ वेसेंडाइल इवन दो। सो शी टोल्ड दैट व्हाट हैपेंड देयर इन हर रूम। Fritz came and Rupert came and Rupert fought with the Black Michael and he knocked him down with one blow. He knocked him down with one blow, and after it he was ready to kill all the people who were there in the room. But as she thought that it was her time to play her role, so Rupert jumped from window to the moat, and he was there in the moat. She was just there with the black Michael's body. But when Rupert challenged Black Michael again and again, तो कहा कि इसने एंटनी न्यूमैन ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं गई उस शख्स को चैलेंज करने के लिए, उसको देखने के लिए जिसने मेरे ब्लैक माइकल को, मेरे बिलव को मारा था। एंड देयर शी वाज हैविंग द गन एंड ऑल दिस थिंग हैपेंड देयर इन द पास्ट, यू नो इट वेरी वेल। और जब आखिर में पता चल जाता है कि रूपर्ट भागता है वहाँ से, मोड़ पे जंप करता है, तो ये खातून जो है सब भी आ जाते हैं वहाँ पे, तो उनके पाँव में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। And that was the story told by Anthony Newman. On the other hand, when we see the Rupert, the lust and daring of Rupert, from the very beginning to the last, he is a dear soul, no doubt about it. बहुत daring है, बहुत करेज है इनके पास, बड़े तहम्मुल से, बड़े ही क्या कहते हैं बहादुरी के साथ ये चीज़ों को फॉलो करते हैं। इस पूरे प्लॉट के अंदर अगर कोई करेजियस शख्स नज़र आता है, इवन दो फ्रॉम हमारे पास रुडोल्फ वेसेंडाइल भी हैं, उनकी निस्बत भी जो स्ट्रॉन्ग शख्स नज़र आता है वो हमें रूपर्ट है। तो रूपर्ट वहाँ से भागते हैं और सारा आपके सामने है। देन सेप्ट और फ्रिट्ज किस तरह से शैटियो के अंदर आए, दैट इज द थिंग टोल्ड बाय सेप्ट। सेप्ट टोल्ड दैट वी वेटेड फॉर 2:30 फॉर यू, even though half an hour we were late, but we waited for you. Then we said Fritz to the other side of the castle and we didn't find you. Then Sept and Fritz, we both came to on one point and decided that we will send Berniston to Talham and call up Marshall to attack with us on the chateau. उसको हमने भेज दिया और फिर हमने क्या किया, सेप्ट और फ्रिट्ज हम दोनों ने मिलकर हमला किया। हमने हमला किया और हमने रेजिस्टेंस को फेस किया। उस रेजिस्टेंस को जब हमने फेस किया तो तकरीबन हमें थोड़ा वक्त लगा। उसको फेस करने के बाद हम अंदर आए, हमने लोगों को मारा, और जैसे ही एज पर टू द प्लान वी किल्ड द पीपल हु वर देयर इन द मेन हॉल एज टोल्ड बाय द जानर। वी वेंट टू द अदर अपार्टमेंट्स एंड वी फाउंड द डेड बॉडी ऑफ ब्लैक माइकल। हमें लग गया कि आप आ गए हैं। उसके बाद देन वी वेंट अहेड एंड वी विटनेस्ड द थिंग्स देयर।
on the drawbridge. The Rupert jumped into the moat, and then we witnessed that you jumped into the moat too. उसके बाद हमें लगा कि आपने कुछ किया होगा. Then we went into the king's room. किंग के रूम की तरफ जाने लगे तो हमें सबसे पहले फ्रिट्स जो है गिरते गिरते बचा, बिकॉज वहाँ पे डेड बॉडी थी डिकॉर्डेड की. उसके बाद वी वर देयर इन द किंग सेल. अंधेरा था, हमें अंदाजा था, दरवाज़ा खुला हुआ था, चाबी लगी हुई थी, कुछ तो हुआ है. हम अंदर गए, एंड व्हेन वी वेंट इनटू द रूम वी फाइंड आउट द बॉडी ऑफ द किंग. लेकिन उसके साथ बर्सनन की डेड बॉडी को पाया हमने, रिचर्ड की डेड बॉडी को पाया, और साथ में वो डॉक्टर भी जो वहाँ पे मर चुका था उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पर थी. मीनवाइल वी डिसाइडेड टू सेंड फ्रिट्स. फ्रिट्स को हमने आपके पीछे भेजा फॉरेस्ट में, और जहाँ पर उन्होंने आपको बचाया. नाउ दैट इज द होल स्टोरी. बट नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, दैट हाउ टू रिवील दैट स्टोरी इन फ्रंट ऑफ द कॉमन पीपल. So we had an official news there, and what was that official bulletin? हुआ यह कि हमने रिपोर्ट ये बनाई और न्यूज़ ये चलाई और ये खबर फैलाई पूरे रूरिटेनिया के अंदर के बादशाह फ्रिट्स और सेप्ट के साथ और अपने कुछ नौजवानों के साथ ब्लैक माइकल से मिलने आए थे. क्यों? क्योंकि ब्लैक माइकल ने बादशाह के एक दोस्त को किडनैप किया हुआ था. इस पर बातचीत हुई, बट मीनवाइल थिंग्स वेंट वर्स, and the king killed the Black Michael and his 6 to 8 people in this battle. And in this battle he was wounded, seriously wounded, and Rupert ran away, and also the king's friend ran away to the jungle too. So अब जो भी ब्लैक रूपर्ट को देखें या ब्लैक माइकल या किंग के दोस्त को देखे तो उनसे ये हमने ऑर्डर जारी किया कि वो आके प्राइवेटली किंग से मिले. अपार्ट फ्रॉम इट हमने एक और शख्स भेजा यहाँ से कैसल ऑफ जेंडा से कलमन की तरफ कि वो मार्शल के पास पैगाम लेकर जाए और मार्शल से कहे कि आकर बादशाह को देखे. बादशाह ज़ख्मी है लेकिन अकेले आए, नॉट टू कॉल द प्रिंसेस फ्लेविया. लेकिन अब जब प्रिंसेस फ्लेविया को पता चला कि इस तरह से द किंग वाज वॉन्टेड, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हर टू स्टॉप देयर. सो शी फॉलोड द मार्शल. नाउ मार्शल एंड प्रिंसेस फ्लेविया बोथ आर कमिंग टू द कैसल ऑफ जेंडा. अपार्ट फ्रॉम इट Rodolph Resendal and Fritz were also coming towards the castle of the Zenda. So there was encounter of Flavia and Marshall with the Resendal and Fritz. Resendal ने और Fritz ने उनको देखा तो ये छुप गए दरख्त के पीछे, लेकिन याद हो इनके साथ there was a girl with them too. So she went to see the Princess Flavia. वो गई और जाकर प्रिंसेस फ्लेविया से कहती है कि बादशाह जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं पीछे और वो ज़ख्मी है. Then Princess Flavia said, yes, you are absolutely right. मुझे बताया गया है कि बादशाह ज़ख्मी है लेकिन यहाँ पर नहीं छुपे हुए. बोला नहीं, वो छुपे हुए हैं. आज सुबह बादशाह की और एक शख्स की लड़ाई हो रही थी तो कोई एक और शख्स आए थे जिन्होंने बादशाह को बचाया और वो शख्स भाग गया. The girl was telling a different story there. तो मैं और फ्रिट्स मीन्स रेसेंडाइल किंग, रेसेंडाइल एंड फ्रिट्स दोनों थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है अब. नाउ प्रिंसेस फ्लेविया said, okay, let's see if you're telling true or a lie. इस दौरान जब वो जाने लगते हैं तो सेप्ट आ जाते हैं और सेप्ट आते कहते हैं, मैडम वेयर आर यू गोइंग, किंग इज हियर इन द कैसल एंड ही इज वॉन्टेड. प्रिंसेस फ्लेविया कहती हैं, सेप्ट ये कोई मजाक का वक्त नहीं है. इस बच्ची ने मुझसे कहा है कि बादशाह वहां पर है. बस सेप्ट का नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. Then Princess Flavia said, how that thing is going to be possible that we are going to have one king at 2 times. Then Sept realized and Sept said that, okay, you want to check it, go with me. मार्शल को वहीं पर रोकते हैं प्रिंसेस फ्लेविया और सेप्ट जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वहाँ पर
फ्रिट्स और रेसेंडाल दोनों होते हैं। तो फ्रिट्स रेसेंडाल से कहता है कि मुंह छुपाए रखना है, you need to go down, you to be on the knees and not to say anything. Now Princess Flavia was there and she was saying, हाथ हटाया उनका उनके चेहरे से, that is my beloved, that is the king. सब कहते हैं मैडम बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये आपके बिलव्ड तो है लेकिन किंग नहीं है. Then she asked from me and I was having nothing to say but just shame on my in my eyes. मुंह नीचे कर लेता हूँ. इसी दौरान क्या होता है, फ्रिट्ज जो होता है वो रोने लग जाता है, क्योंकि फ्रिट्ज आई टोल्ड यू इज अ मैन ऑफ इमोशंस. जब वो रोने लग जाता है तो प्रिंसेस फ्लेविया को यकीन हो जाता है कि सच है. उस वक्त सब कहते हैं कि ये आपका बिलव्ड तो है लेकिन ये बादशाह नहीं है. एट दैट मोमेंट प्रिंसेस फ्लेविया fell down on the ground and I was cursing and I was crying with the pain and I was cursing the heaven that मुझे रूपट की तलवार से घायल कर दिया होता बजाय इसके कि ये दुख जो अब मैं सह रहा हूँ ये ज़्यादा बड़ा दुख है मेरे लिए. Why? Because he cheated Princess Flavia in the mean of love and he told previously in the last chapters that is going to be the biggest loss we are going to have. क्योंकि किसी का इतबार या ट्रस्ट तोड़ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है. एंड दे डिड इट. सो वी स्टॉप यू हियर नाउ. लेट्स सी, यहाँ पे हमको छोड़ते हैं 20 चैप्टर में. अब हमारे पास आएगा 21st चैप्टर, दैट इज इफ लव वर ऑल. उससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर से. एक क्वेश्चन ये होता है, डिस्क्राइब द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ डी मकबान एज इट इज रिवील्ड बाय सेप्ट इन दिस चैप्टर, दैट हाउ शी was cheated in love by the Michael. Second question है, how Sept and Fritz took the command of castle of Zenda. And third is, how the truth of imposture was disclosed to the Princess Flavia in the forest of Zenda. Stop you here, and by the end of the day, we are having a poem of a poet, and you need to enjoy it. Thank you. Allah Hafiz. Pearls of Wisdom. The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted bare, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference.